Good morning students. Today I am going to continue exercise 7b. In previous online class we have already done question 1 and question number 2. Now question 3 factorize. A part 16p square minus 18p cube minus 25r square plus q square. So same initially we make a group of the given terms and then factorize. So we observe that 16p square 18p cube, it means we rearrange this q square on third place. 16p square minus 18p cube plus q square and minus 25r square. We rearrange q square to the third place. Now we observe that from these three terms, this is 4p whole square minus 2ab plus q whole square. Clear? In first bracket I put 4p and second bracket q. Now 4p square 16p square, 2 4 the 8, 8 into pq, 8pq, q square. It means this is the whole square of 4p minus q whole square and minus 25r square we have written as it is. Now 4p minus q whole square minus 25, it means 5r whole square. 25r square, it means it is the square of 5r. Now a square minus b square, again identity. So what is a square minus b square? A plus b and a minus b. So here we apply a square minus b square identity. A square minus b square is actually x square minus y square. I write you root to x square minus y square. So x plus y and x minus y. By using this identity, so initially we write in plus form 4p minus q plus 5r and in second bracket 4p minus q minus 5r. So in this manner we got the factors of the given polynomial. Got it? So initially we make a group of the given terms. By making group we observe that it forms an identity. So we apply identity for it. After that again we apply identity x square minus y square. X square minus y square is x plus y and x minus y. Okay student? Now C part. 64x square y square minus 9x square plus 18xy minus 9y square. So students, हमें ग्रुपिंग करते टाइम पे ये जरूर दिखाई देना चाहिए कि आइडेंटिटी किस चीज की बनी है. क्लियर? जैसे इसके अंदर तीन टर्म्स को मैंने एक साथ लिखा था, फिर आइडेंटिटी बन गई. ऐसे इसके अंदर शुरू के तीन टर्म लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, 18 है. इट मींस हमें पीछे के तीन टर्म्स को एक साथ लिखना पड़ेगा. कैसे? 64x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, अब माइनस कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया माइनस, या 9 ले लिया. माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बना 9x स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बना माइनस 18xy, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 9y स्क्वायर, प्लस 9y स्क्वायर. Now 64x square y square कर सकता हूँ मैं 8xy का होल स्क्वायर, 8xy का होल स्क्वायर. देन ये किसकी आइडेंटिटी होगी? 3x का स्क्वायर minus 2ab plus 3y का स्क्वायर. सो यहाँ 3x लिख दिया, यहाँ 3y लिख दिया. Got it? So this is 8xy होल स्क्वायर और ये किसका होल स्क्वायर बन गया? a square minus 2ab plus b square. So this is a minus b whole square. a की जगह आ रहा है 3x, b की जगह आ रहा है 3y. तो 3x minus 3y का whole square बन गया. 3x minus 3y का whole square. Now अगेन हमें क्या लिखी आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी? x square minus y square क्या होता है? x plus y into x minus y. x plus y into x minus y. So it becomes 8xy plus, पहले प्लस साइन लेते हैं तो 3x minus 3y रहेगा. क्लियर? एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस एक बार
minus. Now open the brackets. 8xy plus 3xy minus 3y. प्लस साइन है, साइन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अनदर ब्रैकेट में साइन माइनस का है और साइन में चेंजेस आएंगे. ये माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3y. So this is your final factors of the given polynomial. Now a part 6a minus 5b whole square, 6a minus 5b whole square minus 9 a minus 2b whole square, a minus 2b whole square. क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपका. इसके अंदर मैं काम करता हूँ कि 6a minus 5b का होल स्क्वायर को ऐसे ले देता हूँ और 9 इसका स्क्वायर है 3 का, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a minus 2b का होल स्क्वायर. लिख सकता हूँ 9 इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, इसको मैंने होल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. अब इस 3 को अंदर एड करवा दो. 6a minus 5b का होल स्क्वायर, इस 3 को अंदर एड करवा दो तो क्या हो जाएगा 3a minus 6b का होल स्क्वायर. नाउ ये कैसा दिख रहा है x square minus y square, x square minus y square. So what is x square minus y square? x square minus y square is एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x plus y and x minus y. So ये तो आपका x हो गया. It means 6a minus 5b plus 3a minus 6b, 3a minus 6b. ब्रैकेट में लिख दो, बाद में ब्रैकेट ओपन कर दो और एक बार माइनस में 6a minus 5b ब्रैकेट 3a minus 6b, 3a minus 6b in bracket. Clear? Now open the bracket. 6a minus 5b plus 3a minus 6b, ये पहले ब्रैकेट के अंदर, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर 6a minus 5b minus 3a plus 6b, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. नाउ 6a भी प्लस का 3a भी प्लस का तो कितना हो जाएगा 9a minus 5b और minus 6b minus 11b. ओके 6a minus 3a that is 3a minus 5b or plus 6b that is b. So this is your vectors of the given polynomials. Now G part. 64a8 b8 minus 36a square b square, 36a square b square. क्लियर? तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है. सबसे पहले कॉमन देखो, इसके बाद कॉमन के बाद क्या चेक करना है कि इसके अंदर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही. क्लियर? तो कॉमन क्या है 64 और 36. कुछ आ रहा है कॉमन? 12 कॉमन आएगा, 12 नहीं, 2 कॉमन आ रहा है, 4 आएगा कॉमन, 4 आ जाएगा. फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे आ जाएगा. 4 क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर. अंदर क्या बचा 16 a6 b6 minus 9. a स्क्वायर b स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने. क्लियर? तो 4 into 16 64, 4 a स्क्वायर into a6 a8 b स्क्वायर into b6 b8, 4 into 9 36 a स्क्वायर b स्क्वायर. ओके तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया. नाउ 4a square b square, अब ये 16 a6 b6 किसका स्क्वायर है? 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो a6 b6 है तो इसको मैं लिख दूंगा a3 b3 इसका स्क्वायर. 9 इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 9 इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर. नाउ इट लुक्स लाइक x square minus y square. इसकी तरह दिखिए ये x square minus y square. So what is x square minus y square? x plus y into x minus y, x plus y into x minus y. So 4a square b square, एक बार प्लस में 4a cube b cube plus 3 और एक बार माइनस में 4a cube b cube minus 3. So this is your final factors of the given polynomial.
लास्ट आई पार्ट m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टर्स करेंगे। क्लियर? m4 किसका स्क्वायर है? m स्क्वायर का। ये किसका स्क्वायर है? m का 1 का। तो इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या रीअरेंज करें? m4 प्लस यहाँ 2m स्क्वायर अगर होता तो ये आइडेंटिटी बन जाती। अगर ये 2m स्क्वायर होता तो m स्क्वायर प्लस 1 की आइडेंटिटी बन जाती। क्लियर? तो यहाँ पर m स्क्वायर है तो हमें माइनस का m स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का m स्क्वायर। माइनस m स्क्वायर मींस 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया प्लस का m स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? इज इट क्लियर? यहाँ m स्क्वायर था तो उसको मैंने क्या लिखा? 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गया, m स्क्वायर रिमेन। सो नाउ इन तीनों को एक साथ लेने पे आइडेंटिटी बन जाएगी। ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 into ab प्लस 1 का स्क्वायर और लास्ट में चलता है m स्क्वायर, वो अलग चल रहा है। तो यहाँ पे m स्क्वायर लिख देता मैं और यहाँ 1, दो 1 राइट होगा। m स्क्वायर का स्क्वायर m4, 2 into m स्क्वायर 2m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। सो इट मींस इट इज द स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर, माइनस m का स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर का। अब ये अगेन आइडेंटिटी बन गई कौन सी? h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है? x प्लस y into x माइनस y। तो एक बार प्लस में लिख दो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। क्लियर? और एक बार माइनस में लिख दो m स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। क्लियर? इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो यही आंसर हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन फोर्थ में आपसे इवैल्यूएट पूछ रहे हैं। इसका ए पार्ट 307 into 293। तो सिंपल मल्टीप्लाई फोर्थ उसका बच्चा भी कर सकता है। तो आपको इसको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? 300 प्लस 7, क्लियर? और 293 को लिख देंगे 300 माइनस 7। स्मार्ट वर्क, a प्लस b a माइनस b। क्लियर? सो व्हाट इज a प्लस b and a माइनस b? आइडेंटिटी में दोनों तरफ का याद होना चाहिए। x प्लस y into x माइनस y क्या होता है? x प्लस y into x माइनस y that is x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ यहाँ 300 है तो 300 का स्क्वायर माइनस 7 है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्लियर? तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 90,000 और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? तो खाली सब्ट्रैक्ट तो करना है। 10 minus 9 1, 9 minus 4 5, 9 9 8। so this is your final answer। सी पार्ट भी इजी हो जाएगा आपसे। मैं सब बी पार्ट कर देता हूं। बी 4.15 into 3.85, 4.15 into 3.85 सेम ऐसे ही होगा। कैसे हुआ? 4 प्लस 0.15 और 4 माइनस 0.15। अगर प्लस करोगे 0.15 को तो 4.15 आ जाएगा और अगर माइनस करोगे तो 3.85 आ जाएगा। सो दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर, वही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि x प्लस y माइनस y है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 0.15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर हो जाएगा। सो इट बिकम 0.0225, 0.0225। क्लियर? तो 16 में से इसको माइनस कर दो तो 5, 2 से 9 7, 2 से 9 7, देन 9, 16 है तो 15।
15.9775 15.9775 चेक करके तो सही है लोगे 5 5 10 7 9 10 7 8 9 10 9 1 10 15 1 16 so it is correct. So students, in this manner, by using algebraic identity, we have done the factorization of given polynomials. Now student, homework from this exercise 7b, question 3rd, B part, D part, F part, H part, and question 4th, C part, D part and E part. C part, D part and E part. Now student, exercise 7c, splitting middle term method of factorization. तो सबसे पहले हमने सीखा था कि कॉमन ले लो, जितने भी पॉलिनोमियल उसको कॉमन लेके सीखा फैक्टराइज करना, देन एचसीएफ मैट्रिक्स सीखा फैक्टराइज करना, देन आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी बेस सीखा फैक्टराइज करना, देन ग्रुपिंग करके सीखा फैक्टराइज करना. नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जब चारों मेथड अप्लाई नहीं हो तो हमें फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पड़ेगा. तो एक्सरसाइज 7c के अंदर क्वेश्चन 1 2 3 जो क्वेश्चन को आपको बुक में ही करने हैं सेल्फ, मैं आपको क्वेश्चन 4 से करवा रहा हूं. इसमें क्वेश्चन 4 में फैक्टराइज का फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट is x square minus 15x plus 56. X square minus 15x plus 56. Questions मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, अच्छी तरह सीखना क्योंकि अभी 8 9 10 11 12 हर क्लास में ये काम आएगी फैक्टराइज, यही मेथड काम है. क्लियर? इसमें क्या करते हो देख लो, इसमें पूरा प्रोसेस देख रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में सीधे करोगे. तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इनटू करते हैं. तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 56 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो 56 आ गया. क्लियर? अब स्टेप 2 में इसको फैक्टराइज करते हैं. स्टेप 2 में क्या करते हैं, डू प्राइम फैक्टर ऑफ 56, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56. तो 56 के फैक्टर्स कर लो. 56 2 से जाएगा 28 टाइम्स, देन 2 से जाएगा 14 टाइम्स, देन 2 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 1 टाइम. 7 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम. तो 56 के फैक्टर्स क्या होगा 2 into 2 into 2 into 7. क्लियर? नाउ जो फैक्टराइज किया है आपने, तो बीच में आ रहा है 15, बीच में क्या आ रहा है 15. तो फैक्टर इस तरीके से लेने हैं कि इनटू करने पे 56 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 15 आ जाए. क्लियर? अब इनटू करने पे प्लस का साइन कब आता है, स्टेप 3 में देखना है कि इनटू करने पे प्लस का साइन कब आता है, जब दोनों साइन प्लस के हो, जब दोनों साइन किसके हो प्लस के हो तब आता है प्लस का साइन, या फिर दोनों साइन किसके हो माइनस के, दोनों साइन किसके हो माइनस के, तब भी आता है प्लस का साइन. क्लियर? तो मिडिल टर्म वाला हमारा माइनस का है, मिडिल टर्म वाला किसका है माइनस का है. इसका मतलब दोनों प्लस के तो है नहीं, दोनों फैक्टर्स प्लस के नहीं है. आई रिपीट वंस अगेन, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कर लो. 56 आया, इसे फैक्टर्स कर दो. अब बीच वाला टर्म देखो, बीच वाला माइनस का 15 आ रहा है, तो इनटू करने पे हमारा 56 प्लस का है. तो इनटू करने पे प्लस का 56 कब आएगा, जब दोनों नंबर किसके हो, या तो प्लस के हो या माइनस के. अब प्लस के क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बीच वाला टर्म हमारा माइनस का है. बीच वाला टर्म किसका है
4 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 7, 8 और 7, 8 और 7 लेने पे आ रहा है 56। इट मींस x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 का, तो फैक्टर्स क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 7x। फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस का 8 और माइनस का 7। देखना जरा, अगर माइनस 8 और माइनस 7 करूंगा तो 56 आ रहा है, यस और नो। माइनस माइनस प्लस, और प्लस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15, प्लस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15। इट मींस वी आर करेक्ट। सो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 8। इनमें से कॉमन क्या आएगा, 7 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 8। क्लियर, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आप फैक्टराइज गलत कर रहे हो। सो अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 8, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 8, अंदर क्या बचा, x माइनस 7। सो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। आई रिपीट इट वंस अगेन, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसके अंदर ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई ग्रुपिंग कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। सो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इंटू करते हैं। 56 into 1 56 आ रहा है, क्लियर। और 56 के प्राइम फैक्टर्स कर दो। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आपको देख रहा है कि इंटू करने पे प्लस का 56 आ रहा है, तो इंटू करने पे प्लस की चीज कब आती है, जब दोनों चीज प्लस की हो या फिर दोनों चीज माइनस की। अब बीच वाला नंबर हमारा माइनस का है, इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर्स किस में होंगे, माइनस में होंगे। दोनों फैक्टर्स किस में होंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू करने पे प्लस 56 और प्लस करने पे माइनस 15 आ जाएगा। तो हमने माइनस 15 की जगह यहाँ पे माइनस 8 और माइनस 7 लिख दिया। क्लियर। अब इसमें x कॉमन आया तो x माइनस 8, इसमें माइनस 7 कॉमन आया, x प्लस का होगा 56 में से माइनस का, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। x माइनस 8 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 7। क्या करना है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इंटू कर लो, तो 15 बन जाए 15, क्लियर। और 15 के फैक्टर्स कर दो, 15 के क्या कर दो, फैक्टर्स, 3 5 के 15, 5 बन जाए 5। अब हमारा जो 15 आ रहा है प्रोडक्ट वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों नंबर या तो माइनस में हो, माइनस माइनस प्लस, या दोनों प्लस में हो। अब बीच वाला टर्म देखो, बीच वाला प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर्स किसके होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो फैक्टर्स क्या हो गए, 5 और 3 हो गए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। देखो इंटू करने पे 15 आ रहा है, फैक्टर है 15, दोनों प्लस करने प्लस 15 और प्लस करने पे 8x आ रहा है। नाउ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। दिस टू आर सेम, इसको कॉमन निकाल दो, x प्लस 3 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5, x प्लस 5। सो दिस इज आवर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ f पार्ट, x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60, क्लियर। तो सबसे पहला काम कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इंटू करो, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 60, साइन को भी ध्यान रखना, माइनस 60, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1, तो माइनस 60 into 1 माइनस 60। तो अब 60 के फैक्टर्स कर दो, 2 से 30 बार, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। अब फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि इनटू करने पे तो क्या आ जाए, माइनस का 60 प्लस 60 नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म माइनस का, इनटू करने पे माइनस का 60 चाहिए। तो इनटू करने पे माइनस का नंबर कब आता है, जब एक नंबर किसका हो, प्लस का, और एक नंबर किसका हो, माइनस का, तब इनटू करने पे माइनस का नंबर आता है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन के साथ कब आता है आंसर, जब एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का। अब हमें डिसाइड करना है कि ग्रेटर नंबर किसका है, तो बीच वाला टर्म देख लो, बीच वाला माइनस आ रहा है, बीच वाला टर्म माइनस में, इट मींस हमारा ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा। ग्रेटर नंबर कैसा होगा, नेगेटिव, और स्मॉलर नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। आई रिपीट वंस अगेन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, कांस्टेंट टर्म माइनस 60, तो माइनस 60 into 1 माइनस 60, तो इनटू करने में माइनस कब आता है, जब एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो, क्लियर, तब प्रोडक्ट इनका माइनस में आता है। अब हमें डिसाइड करना है कि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है,
तो हमें बीच वाला टर्म देखना पड़ेगा, बीच वाला माइनस में, इसका मतलब ग्रेटर नंबर हमारा माइनस का है, स्मॉलर नंबर प्लस का। अब फैक्टर्स देखो कि इनटू करने पे -60 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए 17 आ जाए। टू टू जा 4, 4 5 जा 20, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20। तो अगर माइनस का 20 लिखूं मैं, x स्क्वायर माइनस 20 x 20 माइनस का लिख दिया और 3x किसका लिख दो प्लस का। अब देखो -20 प्लस 3 -17 बच रहा है, -20 प्लस 3 दैट इज -17 और -20 into 3 करोगे तो -60 आ जाएगा। नाउ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, अंदर बचा x -20। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आया, अंदर आया x -20। सो x -20 दोनों में आ रहा है, x + 3। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। नाउ आफ्टर f I of k part x square minus 4x minus 21, x square minus 4x minus 21। क्लियर? अगेन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस का है तो -21 आना चाहिए, तो 21 के फ्रैक्शंस कर लो। 21 3 से 7 बार, 3 से 7 से 1 बार। ठीक है? अब माइनस का नंबर कब आता है, जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तब इनटू करने पे माइनस में आता है। इज इट क्लियर? अब हमें देखना है कि ग्रेटर नंबर किसका है, स्मॉलर नंबर किसका है। बीच वाला साइन माइनस का है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर हमारा नेगेटिव होगा। ग्रेटर नंबर कैसा होगा, नेगेटिव, और स्मॉलर नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब फैक्टर्स देख लो, दिख ही रहा है 7 और 3। x स्क्वायर माइनस 7x ग्रेटर नंबर माइनस का होगा प्लस 3x माइनस 21। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, अंदर बचा x - 7, इन दोनों में से कॉमन 3, अंदर बचा x - 7। सो x - 7 और x + 3 आपका आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा -77, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो -77 लाना है। तो माइनस का नंबर कब आएगा, जब एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, तभी माइनस का नंबर आएगा। तो 77 के फैक्टर्स कर दो, 7 से 11 बार, 11 से 1 बार। तो साफ ही दिख रहा है कि बीच वाला प्लस का, इसका मतलब ग्रेटर नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का। ग्रेटर नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का, और स्मॉलर नंबर माइनस का। क्लियर? तो फैक्टर्स क्या होगा, 11 और 7, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77। कॉमन क्या आएगा इसमें से, x कॉमन आया, अंदर बचा x + 11। यहाँ कॉमन क्या आएगा, -7, अंदर क्या बच जाएगा x + 11। माइनस कॉमन ले लिए, इसलिए माइनस का साइन इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। सो फैक्टर्स आर x + 11 और x - 7, x - 7। Now student, today's homework exercise 7B, question 3rd, B part, D part, F part and G part, B, D, F and G part. Question 4th, C part, D part and E part. Question 4th, exercise of 7C. Question 4th, B, D, H और J, B, D, H और J. Clear? Students, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट रखना, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम हो गए, अब कॉपी के मार्क्स दे रहे हैं। तो कॉपी के मार्क्स के लिए मैं इन्हीं क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म पे मंगवाऊंगा आपको अपलोड के साथ, जिसके अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चंस से आपको अपलोड करना है। क्लियर? इन क्वेश्चंस को करते जाना साथ में, ताकि जैसे भी आपको गूगल फॉर्म क्लास टीचर के द्वारा भेजूं, तो आप होमवर्क सबमिट कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए